Hello everyone, myself Sanchita Sharma in front of you all. Students, this video is for class 3rd and today I'll move on with my next chapter, that is chapter 4, Be Honest at All Times. So this story is about three brothers. I'll read the chapter for you and I'll explain also, and then you'll be getting your bookwork, notebook, everything and website. Download it from there and note it down in your fair notebook. So let's begin with it, okay? Be honest at all times. Three elderly brothers lived in a large house near a city in China. Okay, the story is about three boys. All of them were very short-sighted. Short-sighted. What's the meaning of short-sighted? Short-sighted means the person who is unable to see things clearly unless one close to the eyes. Okay, they are not able to see things clearly unless the things are in front of their eyes. Okay, one day the youngest brother said, let me take care of our money. Okay, youngest brother, what did he said? He said that I'll take care of all the money as your eyesight is not good. Elder brother's sight is so bad. Okay, this youngest brother, what he said that elder brother's sight is so bad and he could not see how much money he is getting or giving, and people take advantage of this. Okay, what does he say? He says that now whatever money is there, I'll be keeping it with me, because this elder brother, his eyesight is very bad, and he is not able to see anything. इनको कुछ दिखता नहीं है, कौन कितना पैसा दे रहा है, ये कितने पैसे दे रहे हैं, और पीपल जितने भी और बाकी इंसान है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एडवांटेज उठाते हैं इस चीज़ का. ठीक है. As if you can see better, sneered the middle brother. Okay, now see what the middle brother said. Sneered meant like ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा जैसे तुमको तो बहुत दिखता है. ठीक है, sneered का मतलब होता है थोड़ा डिसरिस्पेक्ट से बात करना. ठीक है, जैसे उसने बोला ना कि उसको दिखाई नहीं देता है तो पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम. तो वैसे ही मतलब दिस मिडिल ब्रदर व्हाट ही सेड दैट, अच्छा तुमको तो बहुत दिखता है जैसे. इफ यू आर सेइंग आवर मनी शुड बी हैंडल्ड बाय द वन हु हैज द बेस्ट साइट, देन इट इज आई हु शुड बी गिवन चार्ज. आई कैन सी बेटर देन ईदर ऑफ यू. देन मिडिल ब्रदर वो क्या बोलता है कि अच्छा तुमको तो बहुत दिखता है जैसे कि. ठीक है, अगर ये बात कह रहे हो कि पैसे हैंडल कौन अच्छे से कर सकता है, आई साइट की बात है, तो मेरी तो बेस्ट आई साइट है, मुझसे अच्छा तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते हो, ये चार्ज तो मुझे ही मिलना चाहिए. I have my doubts about that, said the eldest brother. अब एल्डर जो सबसे बड़ा भाई होता है वो क्या कहता है, मुझे इस बात पे डाउट है, तो एक काम करते हैं, let's settle this once and for all. एक काम करते हैं, इसको सेटल कर लेते हैं, एक बार में काम खत्म हो जाएगा, ये बार बार का लड़ाई झगड़ा जो भी है ये नहीं रहेगा. I have heard that the school is putting up a tablet inscribed with a saying above. Now see what he said. मैंने सुना है कि एक स्कूल है सामने में जहाँ पे एक टैबलेट मतलब होता है बैनर टाइप का. ठीक है, कुछ एक बैनर वहाँ लगने वाला है और उसमें कुछ लिखने वाला भी है. वहाँ पे वो कुछ लिखेंगे, मेन डोर जो होता है वहाँ पे कुछ लिखेंगे वो लोग. ठीक है, वो जो मेन गेट पे बाहर जैसे किसी स्कूल का नाम होता है या कुछ कोटेशंस होते हैं उस टाइप का. ठीक है, वॉल पे. तो ही सेड दैट लेट्स गो देयर टुमारो एंड टेस्ट आवर विजन. वहाँ चलते हैं कल और अपना आँख का टेस्ट करेंगे हम लोग. और whoever can read the writing with the least strain will get charge of our money. और जो भी सबसे कम स्ट्रेन का जो भी पढ़ लेगा वहाँ पे उसको इस पैसों का चार्ज मिल जाएगा उनको. अग्रीड said his brothers in one voice. वो बोलता है सब अग्री हो, तो ये दोनों उसके भाई जो रहते हैं वो लोग कहते हैं हाँ हम अग्री हैं. ठीक है, गुड, नाउ गो अवे एंड लेट मी गेट सम स्लीप. तो वो बड़ा वाला भाई कहता है ठीक है, बहुत अच्छा, गुड, अब एक काम करो, अब तुम लोग भी जाओ और मुझे भी सोने दो. As soon as they had gone, the eldest brother sneaked out of the house and went to the school where he met the caretaker. ठीक है, अब जैसे ही दोनों भाई सोने चल जाते हैं, what this eldest brother did, ये क्या करता है, ये sneaked मतलब होता है कहीं पे चुपचाप से जाना. ठीक है, बिना किसी को बताए. तो ये eldest brother क्या करता है, ये चुपचाप से घर से बाहर निकलता है और ये वहाँ स्कूल में पहुँच जाता है. ठीक है, तो स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ ही मेट द केयर टेकर. वो केयर टेकर से मिलता है वहाँ पे, स्कूल का जो केयर टेकर होता है.
I heard you are putting up over a tablet the doorway, he said. ठीक है, वो केयर टेकर से कहता है, वो उसका एल्डेस्ट ब्रदर जो रहता है वो कहता है, मैंने सुना है यहाँ पे आप कुछ टैबलेट लगाने वाले हो डोरवे पे, क्या आप मुझे बता सकते हो मतलब वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट इट सेज? Certainly, it's a quotation from Confucius. Okay, वो क्या बोलता है, यहाँ पे एक कोटेशन होने वाला है. ठीक है, एक चाइनीज टीचर है, एक चाइनीज प्रोफेसर है, उनके तरफ से मतलब उनका एक कोटेशन लिखा जाएगा. इट रीड्स बी ऑनेस्ट एट ऑल टाइम्स. ठीक है, एक चाइनीज प्रोफेसर है, उनका एक फेमस कोटेशन है, बी ऑनेस्ट एट ऑल टाइम्स, ये लिखा जाएगा. वो बता देता है केयर टेकर. The brother went away chuckling at his cleverness. वो सोचता है कि मैं तो बहुत क्लेवर हूँ, और वो इस चीज़ पे सुन के ये हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है स्माइल करते हुए. A little later the second brother arrived. कुछ देर बाद क्या होता है, उसका जो दूसरा भाई होता है वो आता है. Can you tell me about the tablet you are going to put up over the doorway? What does it say? He asked the caretaker. अब वो जो दूसरा ब्रदर आता है, दूसरे भाई जो आता है, अब वो पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ जो डोरवे पे जो टैबलेट लगने वाला है उसमें क्या लिखा जाएगा? Everybody seems to want to know, said the man. Everybody seems to want to know. उसको ये लगता है अच्छा सब जानना चाह रहे हैं. ठीक है, it reads be honest at all times. ठीक है, अब वो क्या बोलता है, फिर वो केयर टेकर बताता है, हाँ यहाँ लिखा जाएगा be honest at all times. Is there any decoration around it? अब वो कुछ एक्स्ट्रा पूछता है, और क्या उसमें कुछ डेकोरेशन रहेगा? The tablet has a border of flowers. The caretaker says that the tablet has a border of flowers. The second brother went away very pleased with him. वो बहुत खुश होके वहाँ से चला जाता है. Soon after he had gone, the third brother arrived there. और जैसे ही वो सेकंड ब्रदर वहाँ से जाता है, उसका जो तीसरा भाई रहता है वो वहाँ आता है. He too inquired about the writing. वो भी सेम चीज इंक्वायर करता है वहाँ पे. The caretaker told him what it was. अब केयरटेकर उसको ही बता देता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है. He asked if there was any other writing on it. और वो पूछता है अच्छा वहाँ पे और कुछ इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है क्या उस पे? Only the donor's name, Wang Li, at the bottom, said the caretaker. अब केयरटेकर बनाता है, हाँ ये जो डोनर है जो उनका नाम लिखा रहेगा Wang Li, said the caretaker. नीचे में उसका नाम लिखा रहेगा. The next morning, the three brothers walked to the school. अब next morning क्या होता है, तीनों भाई सुबह स्कूल जाते हैं. There's the tablet, said the oldest when they drew near the entrance. अब जैसे oldest brother जो रहता है वो क्या होता है, वो जैसे जाता है और एंट्रेंस के सामने खड़ा होता है और बोलता है यहाँ पे एक टैबलेट है. आई कैन क्लियरली मेक आउट द राइटिंग. और मैं आराम से पढ़ सकता हूँ इसमें क्या लिखा है. इसमें ये लिखा है बी ऑनेस्ट एट ऑल टाइम्स. योर साइट इज बेटर देन आई थॉट, सेड द सेकंड ब्रदर. सेकेंड ब्रदर बोलता है जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है, मेरा साइट तो तुमसे बेटर है, बट डेफिनेटली नॉट. ठीक है, वो बोलता है कि मुझे तो ये लगा था कि तुम्हारा साइट मुझसे अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. कैन यू सी द डेकोरेशन अराउंड द टैबलेट? वो बोलता है तुमको क्या डेकोरेशन दिख रहा है टैबलेट के अगल बगल? डेकोरेशन? व्हाट डेकोरेशन? और उसका भाई बोलता है डेकोरेशन? कौन सा डेकोरेशन? देयर इज अ फ्लावरी बॉर्डर ऑल अराउंड द टैबलेट, सो द ब्रदर ट्रायम्फेंटली. ओके, वो बोलता है कि बॉर्डर के चारों ओर बहुत सुंदर सा फ्लावर बॉर्डर बना हुआ है. उसका भाई क्या होता है, वो खुशी से कहता है, वो बहुत खुश हो जाता है ये सुन के कि उसको नहीं पता है. वेरी गुड सेड द यंगेस्ट ब्रदर. और जो यंगेस्ट ब्रदर रहता है वो बोलता है बहुत अच्छा. बट कैन ईदर ऑफ यू सी एनी अदर राइटिंग ऑन द टैबलेट? पर क्या तुम लोगों को कुछ और भी इसमें लिखा हुआ दिख रहा है? अदर राइटिंग? आस्क्ड द सेकंड ब्रदर लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड. अब दूसरा भाई बोलता है कुछ और भी लिखा है? क्या लिखा है? वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, दुखी हो जाता है. व्हाट अदर राइटिंग इज देयर? द नेम ऑफ द डोनर वैंगली, सेड द यंगेस्ट ब्रदर पॉइंटिंग. और जो यंगेस्ट ब्रदर होता है वो दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पे डोनर का नाम लिखा हुआ है वैंगली. ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? सी, कांट यू सी इट?
इट्स एट दैट कॉर्नर. तुमको दिख नहीं रहा है? इस उस कॉर्नर में लिखा हुआ है, देखो. द केयर टेकर दे हैड टॉक टू द प्रीवियस इवनिंग केम आउट जस्ट देन. और जब आपस में ये लोग बात करते रहते हैं तब तक क्या होता है, जिस केयर टेकर से प्रीवियस इवनिंग जो ये लोग बात किए हुए रहते हैं वो केयर टेकर आता है निकल के. ओह यू हैव कम टू सी द टैबलेट. अच्छा, तो तुम लोग आए हो टैबलेट देखने के लिए. सो सॉरी वी कुडंट पुट इट अप यस्टरडे इवनिंग, वी आर गोइंग टू पुट इट अप टुडे. और वो केयरटेकर क्या कहता है, ओह आई एम सो सॉरी, हम लोग कल प्रीवियस इवनिंग लास्ट इवनिंग हम इसे लगा नहीं पाए टैबलेट को, हम आज सुबह लगाएंगे. तो what these three brothers did, they all went to this caretaker and they just asked. They didn't saw anything. Okay, so what is the moral of the story? The moral of the story is one should always be honest at all times. Okay, so this was the chapter. So now students, you'll be getting your book work, your notebook work, everything in the PDF form in the website. You have to go to the website, download the PDF from there and then do it in your notebook. Thank you.